going to teach you your book Hornbills chapter 3. The title is Discovering Turk, the Saga Continues, which was written by the A.R. William. The main features of the lessons are about the lesson, Egyptians belief, summary of the lesson, and then the conclusion. So come to the first feature about the lesson. This chapter is about the last heir of powerful Pharaoh dynasty. Tutankhamun. The short name is Tut. Tutankhamun, and his short name is Tut. So this chapter is about the last heir of the powerful Pharaoh dynasty, Tut, who died when he was teenager after ruling the 9 years. He died in a mysterious way. This chapter focuses light on all the possibilities of mysterious, the curse, and where his tomb lies, his life, and ultimately death. Means ये जो lesson है ये किसके बारे में? फेरो डायनेस्टी का जो टुट नाम का जो राजा था उसके बारे में है, और वो बहुत जब टीनेजर था तभी उसकी एज ऑफ 19 उसकी डेथ तभी हो गई थी। केवल 9 साल तक उसने वहाँ पर शासन किया, और उसकी जो डेथ थी बड़े ही रहस्यमय तरीके से हुई, मिस्टीरियस वे में हुई। और जो इस चैप्टर ये जो चैप्टर है किस चीज़ के ऊपर लाइट डालता है कि वो उसका जो डेथ हुआ वो कैसे हुआ, उसकी जो टॉम है उसका वो टॉम कहाँ पर है, उसकी लाइफ कैसी थी और उसका डेथ क्या था, क्या कर्ज था, उन सारी चीज़ों के ऊपर ये जो आपका चैप्टर है ये चैप्टर यहाँ पर फोकस करता है। नाउ द मेन इम्पोर्टेंट थिंग इज इजिप्टियंस बिलीफ। इजिप्टियंस जो लोग थे वो क्या उनका विश्वास था, किस चीज़ पे वो विश्वास करते थे। द इजिप्टियंस बिलीव दैट देयर इज अ लाइफ आफ्टर द डेथ, एंड दैट इज द रीजन दैट द Pharaoh were buried with a wealth and lot of gold. मीन्स इन लोगों का मानना था, इजिप्टियंस का ये मानना था कि जब मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, और यही कारण था कि जब कोई फेराओ डायनेस्टी के अंदर अगर जब कोई मरता था तो वो क्या करते थे, बॉडी को मम्मी होती थी, मम्मी के अंदर बहुत सारा वो गोल्ड रखते थे, बहुत सारे उनके डेली यूज आइटम रखते थे, इस बिलीफ से कि जब वो अपनी लाइफ में आएगा तो उसको इस चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। Now, आप समझ गए होंगे what we are going to study in this chapter. Now come to the summary of the lesson. Before I start the summary, I want to introduce you with the king Tut. Tutankhamun Tut. He is also known as a Tut, and his real name is Tutankhamun. He belongs to a Pharaoh dynasty. He was born in 1941 BC and died in 1921 BC. Grandfather's name is Amenhotep IV and father's name is Amenhotep III. This is the introduction of the King Tut. मतलब King Tut को Tutankhamun या टुट के नाम से भी जाना जाता था। वो 1941 जो BC है उसके अंदर वो बॉर्न हुए, एंड 1921 BC के अंदर उनकी डेथ हुई। उनके ग्रैंडफादर का जो नेम था वो Amenhotep IV था, और उनके फादर का नाम Amenhotep III था। तो मैंने आपको पहले उनके बारे में बता दिया। नाउ कम टू द समरी। Tut was the last leader of the great Pharaoh dynasty. He was young when he was died. According to some people, his death was mysterious. बड़े रहस्यमय तरीके से उसकी डेथ हुई थी। In 1922, Howard Carter exposed his body. He was professionally an archaeologist. Then after 80 years, his body again taken up for the CT scan to solve the mystery of his life and death through the forensic
in the month of March and April. One of the coffin put Carter in a trouble because the gum used to paste the body of Ted at the lowest solid gold. Coffin was tightening enough. Coffin was tightening enough that it was impossible to display. He put the box in the sun for numerous days so that the resin lost and but it didn't work. अब होता क्या है कि उसका उसका जो टॉम था, उसकी कब्र थी, वो काफी गहरे में, मतलब 26 फीट अंडरग्राउंड जाकर थी. वहाँ पर कुछ वॉल पेंटिंग्स थी और वॉल पेंटिंग पर जो बना हुआ था उससे ये पता लगता था कि उसकी जो डेथ है वो मार्च या अप्रैल के मंथ के अंदर हुई हो. और एक जो कॉफिन था उस कॉफिन ने कॉटर को बहुत परेशान किया, क्योंकि उस जो कॉफिन था उसको इस तरह के ग्लू से उसके जो ग्लू होता है उससे जो वही मम्मी को ये करने के लिए जो भी करते होंगे, जो भी केमिकल यूज करते होंगे, तो जो ग्लू यूज किया गया था उसकी बॉडी को नीचे बहुत सॉलिड गोल्ड था, उस गोल्ड से स्टक करने, उसको चिपकाने के लिए जो लगाया गया था तो वो बहुत हार्ड था. एंड और जो बॉक्स था वो इतना ज़्यादा टाइट हो चुका था इतने ईयर्स के अंदर कि वो इजीली खुल नहीं पा रहा था. देन कॉटर ने क्या किया, ही पुट द बॉक्स इन द सन. वो जो बॉक्स था उसने उसको धूप में रखा कि शायद वो धूप के अंदर थोड़ा मेल्ट हो जाएगा, लूज हो जाएगा, लेकिन वो भी काम नहीं किया. देन व्हाट हैपेंड, एट लास्ट ही रिमूव द एडिसिव विद द शेशल एंड द हैमर. And Carter says that he had no other choice than cutting the mummy limb to limb. Thieves would have robbed all the golds and of the treasure. So his men first removed the head of the mummy and then they cut each part and every point of the body. Or when the processing of removing the body is complete, then they put the body on a sand layer and after it they put all the body parts in the box and placed it in its original place. Means अब यहाँ पर क्या होता है कि अब वो पहले जो बॉक्स था वो बॉक्स नहीं खुल रहा था, तो बॉक्स को खोलने के लिए उसने क्या किया, हैमर का उसने यूज किया और हैमर से उसे जैसे तैसे खोल लिया. और खोलने के बाद अब उसके पास समस्या ये थी कि अब वो जो क्योंकि निकल नहीं पा रहा था, बहुत उससे चिपका हुआ था, तो अब उसके लिए क्या किया उसने, जो हैमर से जब उसको निकाल लेने के बाद जो वो बॉडी आई, तो बॉडी को जब उसके पास कोई रास्ता नहीं था कि वो क्या करे, पार्ट बाय पार्ट उसको पूरे बॉडी को निकालना पड़ा. पहले हेड निकाला गया, फिर उसके बाद उसके एक जो पार्ट्स हैं उसको पार्ट्स को निकाला गया, फिर उसका जो भी एक्सपेरिमेंट करना था एक्सपेरिमेंट करके वापस उसको एक बॉक्स के अंदर रख के और फिर जहाँ पर उसका ओरिजिनल प्लेस के अंदर वहाँ पर उसको रखा था. देन व्हाट हैपेंड, लेटर इन द ईयर 2009 द बॉडी वाज टेकन फॉर द CT scan and which takes hundreds of X-rays and generates the 3D image. That night after the scan, the workmen passed the body into the box. They went through the ramp, stairs, and lifted the body by the hydraulic trailer that was holding the scanner. अब क्या होता है कि 2009 में उसकी बॉडी को एक बार फिर से निकाला जाता है CT स्कैन करने के लिए. और जब CT स्कैन होता है उस प्रोसेस में उनको बहुत सारे एक्सरेज लेने होते हैं और 3D इमेज उसकी तैयार करनी होती है, तो वो सारा वो प्रोसेस करते हैं. उस रात को क्या जो वर्कर्स थे, उन वर्कर्स ने उसकी बॉडी को जो था उसकी बॉडी को बॉक्स तक लिया और क्योंकि वो 26 फीट मैंने आपको बताया था 26 फीट के लोवेस्ट ग्राउंड लेवल पर था, तो उसके लिए उन्होंने
वो स्टॉप हो गया। फिर बाद में उन्होंने बहुत सारे स्पेयर और वर्क बंद क्यों हुआ, क्योंकि जो सैंड आके उसके अंदर फंस जाती थी एयर से। फिर उन्होंने बहुत सारे स्पेयर फैन का यूज़ किया और उसके बाद वो जो इनका प्रोसेस था सीटी स्कैन का वो कंप्लीट हुआ और वापस से जो उनकी बॉडी थी उनकी बॉडी को उन्होंने क्या किया, जो उनका टॉम था टॉम के अंदर डाल दिया और आज भी बॉडी वहाँ पर रेस्ट कर रही है। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ योर चैप्टर। नाउ कम टू द कंक्लूजन। व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ ऑल द समरी? टू कंक्लूड द summary tells us that Tut was a brave ruler of Pharaoh dynasty. He died in a mysterious death, and he is resting in peace in his tomb now. Means मतलब हमने जो कुछ पढ़ा टुट के बारे में उससे हम ये जानते हैं कि he was a brave, बहुत बहादुर था और जितने भी मतलब शॉर्ट टाइम के लिए उसने अपना रूलर रहा वो, लेकिन जो कुछ भी था काफ़ी उसका फेम था। उसकी बड़ी मिस्टीरियस तरीके से डेथ हुई और बाद में आज भी जो उसकी जो मम्मी है वो अपने टॉम के अंदर, अपनी कब्र के अंदर वो रेस्ट कर रही है। सो रिवाइज अगेन। फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द लेसन मैंने आपको बता दिया कि स्टोरी है दैट फोकसेस ऑन द मिस्टीरियस ऑफ हिज डेथ, कर्स एंड where the Tom is life, his life, and ultimately death. Then Egyptian believes that there is a life after the death. So they kept a lot of gold and wealth with the mummy when they buried the body. Then in summary, the first of all I explain you about the introduction of the King Tut. Tutankhamun, his nickname is Tut, was belonging to the Pharaoh dynasty. He was born in 1941 BC. He died in 1921 BC. His grandfather's name is Amenhotep IV and his father's name is Amenhotep III. And in 1922, the Howard Carter, an archaeologist, disclosed his body. Then I explain you whole summary, and the conclusion is that he was a very brave, and now still his body is lying. His body is rest